Hello, Mataji, you're watching Morning Pulse on Unbill TV. Crime branch officials have solved a 25-year-old murder case from the year 2000 with the arrest of the absconding accused Satish Yadav in a high-stakes operation carried out across multiple states. The official confirmed that Yadav, who had been evading arrest for more than 2 decades, was finally apprehended on Sunday from Ramoli village in Darbhanga, Bihar, despite villagers attempting to help him escape. As per crime branch officials, the murder case dates back to February 6, 2000, when PS Roopnagar received a PCR call. As part of an initiative to reopen long-pending cases of murder and dacoity, crime branch officials revived the investigation and conducted continuous technical surveillance. Satish's family members' phone numbers were monitored, eventually leading to the team to his native village. During interrogation, the accused confessed to killing Sajan in anger by striking him multiple times with an axe before fleeing Delhi. Following his arrest, Satish was booked under Kalandra YDD number 114 dated December 8, 2025, section 35 close 1 close TBNSS PS crime branch and produced before the court. The Central Zoo Authority, a statutory body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, Government of India, has approved the transfer of 30 white-rumped vultures and 5 slender-billed vultures from Vulture Conservation and Breeding Centre Rani Guwahati to the 6th edition of Kaziranga National Park and Tiger Reserve under Vishwanath Wildlife Division. Both the slender-billed vultures and wide-rumped vultures are classified as critically endangered on the IUCN retired list. They are also protected under Schedule 1 of India's Wildlife Protection Act 1972, offering the highest level of legal safeguards. Vultures hold mixed cultural roles in India, often viewed as symbols of environmental balance and purity in rural communities, where their presence near cremation grounds along riverbanks traditionally signified a natural cycle of death and decay. The Tripura Human Rights Commission will observe International Human Rights Day on December 10 at Pragna Bhavan, Agartala, on theme Human Rights or Everyday Essentials. Chief Minister Professor Dr. Manik Shah will inaugurate the event as chief guest. Director General of Police Anurag Dhankar, IPS, will attend as guest of honor. Other dignitaries scheduled to attend include Tripura Commission for Women Chairperson Jara Dibrama, Law Department Secretary Sankar Das, TJS GR1 and Advocate General of Tripura Saktimuni Chakrabarti. THRC Chairperson Justice Arindam Lodge will preside over the program. According to the data shared by the Commission, DHRC has received 680 complaints between 2016 and 29 November 2025. Of these, 579 cases have been disposed of, leaving 101 pending. The Commission has recommended compensation in 62 cases amounting to Rs 97 lakh 309. Since its inception, DHRC has conducted 22 awareness programs and 12 internship programs. It has also published newsletters, annual reports and editions of the Tripura Human Rights Commission regulations and a Universal Declaration of Human Rights in multiple languages. The observance aims to strengthen public awareness and highlight the importance of protecting human rights in everyday life. Let me introduce myself. I am Secretary, Tripura Human Rights Commission, and on my right, Sri Dipankar Pal, he is Additional SP, Tripura Human Rights Commission. As you may be aware that on 10 December, that is day after tomorrow, we will be celebrating International Human Rights Day at Pragya Bhavan at 11 AM. In that program, our Honorable Chief Minister, Sri Manik Shah, he will remain as a chief guest as well as inaugurator. Apart from him, DGP Mr. Anurag will remain as a guest of honor. Apart from him, there will be other honorable guests like Shaktimay Chakrabarti, Advocate General, Government of Tripura, Jorna Debbarma, Honorable Chairperson, Tripura Women's Commission, Shankari Das, Secretary Law. So I request you, all of you, to remain present in that program and also to disseminate this information to the public. Tensions erupted at Dharmanagar District Hospital located in North Tripura district on Sunday night after the family members of an accident victim alleged that the duty doctor left the patient unattended
in the emergency ward, triggering loud protests and scenes of chaos. According to officials, the Dharmanagar Fire Service received a call around 8 p.m. about an accident in Burba Haflong area. A fire service team rushed to the spot and found a man lying critically injured on the road. Personnel said a tuk-tuk e-rickshaw had overturned after losing control, leaving the passenger severely injured while the driver fled with the vehicle. The victim was identified as Sribas Nath, 32, a resident of Burba Haflong. Fire personnel rescued him and brought him to the district hospital. Family members alleged that the duty doctor examined Nath once and then left without providing any instructions or updates. They claimed that the victim, who had suffered a fractured arm and was in intense pain, remained unattended for a prolonged period despite repeated requests for medical help. As frustration grew, relatives staged noisy protests against inside the emergency ward, accusing the hospital authorities of negligence. Hearing the commotion, the doctor returned and handed over a prescription explaining the next course of action. ভাই একটু একটু না ইয়ে ডাক্তার কি এতক্ষণ আসলো নাকি স্যার স্যার না আগে তো দেখছেন বলতে আপনি তো রোগীর সামনে না তো এখন স্যার এটা পূর্ব হাফলং আপনার এই প্লাইউডের যে ফ্যাক্টরি, হ্যাঁ ওই ওখানে হঠাৎ করে একটা টুকটুক উল্টে যায় রাস্তার মধ্যে। উল্টে গিয়ে টুকটুকের মধ্যে বসা ছিল এক প্যাসেঞ্জার, ওনার এই হাতটা ভেঙে গেছে। তো ক্যাজুয়ালিটিকে ওখানে ফেলেই টুকটুকটা কোর্ট থেকে পালিয়েছে, যার কারণে টুকটুকের নাম্বার আমরা কালেকশন করতে পারিনি। তো গিয়ে দেখি ক্যাজুয়ালিটি রাস্তার মধ্যে পড়েছিল এবং খুব সিরিয়াস ইঞ্জুরি অবস্থাতে। তো ওনাকে আমরা রেস্কিউ করলাম, করে ধর্মনগর হসপিটালে শিফট করেছি। ওনার চিকিৎসা চলছে। ওনার নাম শ্রীবাস নাথ, বয়স 32 বছর, বাবার নাম দীরেশ নাথ, বাড়ি পূর্ব হাফলং। In the midst of widespread Indigo flight cancellations, political reactions continue to intensify. Assam Congress President and MP Gaurav Gogoi has sharply criticized the central government's response in Parliament. Gogoi said that the government has been making statements in both the Rajya Sabha and the Lok Sabha over the past 2 days, placing the entire responsibility for disruptions on owner of the private airline. इंडिगो के मामले में पिछले 2 दिनों में सरकार के तरफ से राज्यसभा और लोकसभा में बयान आया है। सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेवारी एक निजी कंपनी के मालिक की है, मानो खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं। मानो रेगुलेटर जो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी कोई भूमिका ही नहीं। हजारों फ्लाइट कैंसिल हुए, हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट में बहुत बदतर परिस्थितियों में उनको रहना पड़ा। कितने पैसे खर्च हुए और सरकार ने पायलट की सुविधा के लिए जो कानून लाया वो कानून भी बदल दिया और उस पे यू टर्न मारा। तो न पायलट को राहत, न ग्राहक को राहत, न सरकार की तरफ से जिम्मेवारी। और
कंपनी के मालिक को बस एक नोट दे दिया और यहीं तक सरकार समझती है कि उनकी जिम्मेवारी खत्म। आज इसीलिए लोकसभा में जब मंत्री का बयान आया तो पूरा विपक्षी दल इससे असहमत था, हम संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। और हमारी मांग स्पष्ट है कि सरकार ने तो इस पूरे विषय से भागने की कोशिश तो की, लेकिन आम व्यक्ति का, आम ग्राहकों का, जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, जो पायलट है, उनकी बात हमने सदन के अंदर नहीं सुनी। उनका पक्ष, उनका दर्द, उनकी कठिनाई हमने सदन के अंदर नहीं सुनी। हमारी मांग स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ मंत्री के द्वारा बयान देकर अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कितने फ्लाइट कैंसिल हुए उसका नहीं, एक बहुत बड़ी कहानी इसके पीछे है, जिस कहानी का लोग एक प्रकार से समझ भी रहे हो क्या रहा है, तो पूरी कहानी का पर्दाफाश सदन के अंदर होना चाहिए। In Goa, the investigation continues following the devastating nightclub fires that claimed 25 lives. Briefing the media, Goa Police DIG Vashu Sharma described the incident as extremely painful and said that the police have been working on multiple fronts, from identifying the victims and conducting post-mortem examinations to ensuring the timely handover of bodies to the families. DIG Sharma confirmed that the accused were promptly charged and arrested. She added that lookout circulars were issued against the club owners who are believed to be in Phuket. Action is now underway with the assistance of the CBI and Interpol, and police teams are already stationed in Delhi to coordinate the process. दर्दनाक हादसा था जिसमें 25 लोगों की डेथ हुई। उन सब की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिलेटिव्स को देना, पोस्टमार्टम करवाना, टाइमली हैंडओवर करना। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया, और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। LOCs खोले गए, CBI और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें और जिससे कि जस्टिस हो। सर मैडम, ओनर अभी तक स्टिल इज एब्सेंट, किधर है ऐसा कुछ पता हुआ? दिल्ली को भी गए थे। जो लास्ट उनका पता चला था कि वो अभी फुकेट में थे, जिसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई की थी। दिल्ली में टीम गए थे, दिल्ली में क्या? दिल्ली में हमारी टीम्स है, अभी इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, बट वी आर आफ्टर देम। अभी अपकमिंग दिसंबर सीजन है मैडम, गोवा पुलिस कितना अवेयर रहेगी कि फेस्टिवल सीजन में टूरिस्ट लोग भी बहुत आए हैं? उसके लिए हम लोग ने इंतजाम करे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से शाम की फुट पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, टूरिस्ट को गाइडलाइंस देना, एडवाइजरी, बार ओनर्स और नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट को भी हम लोग की तरफ से गाइडलाइंस इशू हो रही है, जिससे कि ऐसा कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट आगे ना हो। मैडम ये नेग्लिजेंस, ये 4 लोगों को अरेस्ट किया था पहले दिन में, कुछ तो पॉइंट में कुछ किसके लिए हादसा हुआ था ऐसा कुछ बोल रहे थे? वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी फायर से भी रिपोर्ट आनी है, FSL की टीम ने विजिट की है, जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पे हम लोग करेंगे। और मैडम कितना टोटल अभी पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी कितना है? 21 डेड बॉडीज को हैंडओवर किया जा चुका है, बाकी 2 का अभी चल रहा है, उनकी भी फैमिली आ गई है, उनको हैंडओवर हो जाएंगे। 2 लोग के रिलेटिव्स कल आएंगे तो उनका कल हो जाएगा। मैडम अभी भी फिर भी वाघातोर में एक डेमोलिशन भी कर रहे हैं ऐसा बोलता है कि उसमें कैसे दिखते हैं कि गोवा पुलिस? उसके बारे में अभी मैं कमेंट नहीं करूँगा। In Uttarakhand, tensions escalated today as a group of Nihang Sikhs
Stage protests outside the residence of former State Minister and Congress leader Dr. Harak Singh Rawat. The protesters demanded an apology from Rawat over a remark they said hurt the sentiments of the Sikh community. Speaking to the media, Uttarakhand Madrasa Board Chairman Mufti Shamom Qamsmi said that Sikh groups had gathered from various parts of the country to register their protests. He emphasized that Rawat must understand the historical significance behind the phrase 12 noon, which has deep roots in Sikh history. Qamsmi further alleged that the Congress during its decades-long rule has repeatedly hurt religious sentiments across communities. He added that an FIR should be lodged against Harak Singh Rawat over the statement. ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜਥੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਵਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਗੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਟੈ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਾਰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਆ, ਅਸੀਂ फिर आपकी दूजी कार्रवाई शुरू करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। आज हमारे जो सिख भाई अपने भारत के अलग अलग अनेकों भागों से आए हैं, कोई बंगाल से है, चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, अनेकों राज्यों से यहाँ आए और हमारे जत्थेदार जी और हमारे सिंह जो बिल्कुल वो होते हैं जो अपना निहंग जो अपनी पूरा जीवन त्याग देते हैं मानवता के लिए, सेवा के लिए। ऐसे लोगों के बारे में कांग्रेस के एक नेता की ऐसी टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण से भी आगे है। उन्हें अपनी शब्दावलियों पर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हताशा और निराशा में दिया गया स्टेटमेंट है कि उन्हें ये इतिहास जानना चाहिए कि किस तरह से 12 बजे का इतिहास क्या है। अभी हमारे जत्थेदारियों ने बताया कि 12 बजे का इतिहास ये है कि आक्रमणकर्ताओं से, उन आक्रांताओं से हमारी बहनों और बेटियों की हिफाजत करते थे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी आदमी अन्याय करता है उसका डिफेंस नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी मुखालफत करनी चाहिए। तो मैं अपने जत्थेदारियों का सबका स्वागत करता हूं। आप यहां अलग अलग उससे आए हैं, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक आप लोगों से है। हमारा जब आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे का आंदोलन, तो हम गुरुद्वारों में ठहरते थे और गुरुद्वारों के अंदर जाकर के बगैर किसी भेदभाव के सब लोग वहां जाते हैं, उनकी सेवा होती है। तो मैं आज इस मौके पे कहना चाहूंगा कांग्रेस से कि 60 साल आपने राज किया, सिर्फ आपने हिंदू मुसलमानों को, सिखों, ईसाइयों को, उनके धार्मिक आस्थाओं को आपने ठेस पहुंचाई है। अब कृपया ऐसा ना करिए। अब देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेके चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे लेके चले हैं और बगैर किसी भेदभाव का सबका कल्याण कर रहे हैं। और आज मैं ये बात कहना चाहूंगा कि 60 साल के अंदर कांग्रेस ने दंगे और फसादों के सिवा कुछ नहीं दिया है। आज की हमारी सरकार, उत्तराखंड राज्य की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन सबसे बेहतर काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे अंजाम दे रहे हैं। और आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आपका, अपनी सरकार की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूं और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो भी आपसे जो होगा हम वो उचित कार्रवाई होगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कानून का सामना उन्हें करना पड़ेगा और कानून जो उन्हें सजा देगा, अगर आप लोग उन्हें माफ नहीं करते हैं तो कानून अपना काम करेगा। जैसे भी FIR होगी, मैं समझता हूं उस पर FIR होनी चाहिए और उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए। और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को, कांग्रेस को अगर अपनी थोड़ी भी अगर लाज और लज्जा है तो ऐसे लोगों को बाहर निकाल के खड़ा करें और एक गाइडलाइन बनाएं कि कम से कम वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल न करें। मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, हरक सिंह रावत जी बहुत सीनियर नेता हैं, कैसे ऐसी इस तरह की मानसिकता उनसे निकल रही है कि क्या है ये चीज। भाई आपने 60 साल इस देश पर राज किया है तो क्या यही करेंगे आप?
तो इसलिए मैं अपने सिख भाइयों का, अपने जत्थादारियों का, अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर आप हमारे अतिथि हैं और हमारा देवभूमि का जो आचरण है वो अतिथि देवो भवो, हमारे लिए तो आप जो हैं अतिथि हैं। आप उत्तराखंड राज्य के अंदर आए हैं, उत्तराखंड राज्य आपका सम्मान करता है, आपका स्वागत करता है और जो भी कार्रवाइयां होंगी हम आपके साथ खड़े हैं। Dr. Navjot Kaur Sidhu, wife of former Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu, was suspended on Monday after she made allegation during a press interaction outside Chandigarh's Raj Bhavan explaining the family lacked funds to compete for top roles. The remark prompted swift backlash from party leaders, including pointed questions about past Sidhu appointments and calls for her seek mental health support. On December 8, Punjab Congress Chief Amrinder Singh Raja Waring suspended her membership immediately, citing damage to the party's image before 2027 polls. कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं हैं किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। अगर बीजेपी जिम्मेवारी लेती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी में? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे। Congress leader Sukhjinder Singh Radhawa stated on Monday that Navjot Kaur has not spoken a word for 3.5 years while the Congress struggled in the state and started making these statements when elections are near. Such people pose a threat to the party. However, both AAP and BJP jumped on the opportunity to criticize the Congress. 500 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं है तो हम सीएम किसी पार्टी में नहीं बन सकते। बहुत बदकिस्मती की बात है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है कितने पैसे दिए। उसके बाद उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए। हम सब भी उनके साथ चले, उनके साथ रहे। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी प्रेसिडेंट के नीचे रहता है। पार्टी जो सुप्रीम है और नेक्स्ट जो है पार्टी में जब बात होती है तो वो चीफ मिनिस्टर आता है। तो वो बताए कि पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए नवजोत कौर जी मेरी बहन के कितने पैसे दिए। 3.5 साल पंजाब का कांग्रेसी वर्कर डंडे खा रहा है, उनके तशद्दुद सह रहा है। 3.5 साल आप बोले नहीं। अब जब इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया तो इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम भी जब इन्होंने कहा, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि हम प्रियंका जी को हमारा उनके साथ बहुत है, तो मैं पूछना चाहता हूं जब धूरी में जहां चीफ मिनिस्टर जो था भगवंत मान, उसकी कंस्टिट्यूएंसी में जब प्रियंका जी गए तो उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू ने डरते हुए या किसी के कहने पर उस स्टेज से क्यों नहीं कांग्रेस का प्रचार किया। अगर आप मेरा लीडर बैठा हो तो मैं कहूं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये पार्टी इनडिसिप्लिन था। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में किसी से कोई खतरा नहीं है, जो ऐसे लोग बैठे हैं उनसे ही खतरा है। सर, जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने एक स्टेटमेंट दिया उसके बाद उनको कांग्रेस से हटाया गया और कल उनका काफी सारा ट्वीट भी आया राजा वड़िंग को लेके और भी लोगों को लेके, कैसे देखते हैं इसको और क्या कहना चाहिए? देखिए, नवजोत कौर सिद्धू जी ने जो भी बोला वो अपनी अंतरात्मा के साथ बहुत सच बोला कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और भ्रष्टाचार करती है। उनका खुलासा किया। आज 4 दिन हो गए कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़े नेता का, ना स्टेट की नेशनल लीडरशिप का, ना नेशनल लीडरशिप का, किसी का डिनायल नहीं आया, ना ही एडमिशन आई। या तो एडमिट कर लेते कि उनकी पार्टी करती है भ्रष्टाचार, या वो डिनाई कर देते। ना डिनायल आया ना एडमिशन आई। इसका मतलब 4 दिन हो गए कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस एलिगेशन से बचा जाए। ये बहुत गंभीर एलिगेशन है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में खूब भ्रष्टाचार होता है। ये लोगों के सामने बात आ चुकी है। सर, जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग जो थे वो उनको कह रहे हैं कि वो उनको दवाइयों का असर है, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। शी इज कैंसर सर्वाइवर।
उन्होंने कैंसर के साथ एक बड़ी जंग लड़के वो उभर के सामने आई है और दोबारा लोगों में आई है और लोगों में आके सेवा कर रही है। ऐसी औरत का तो मैं समझता हूँ सम्मान करना चाहिए। उनसे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, पर लेकिन उसका अपमान जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको डरा रही है, धमका रही है, उसको सस्पेंड कर रही है, कभी उसको बोलते हैं कि आपके खिलाफ केस करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो औरतों का अपमान है वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की विधायक पत्नी, पूर्व विधायक पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का रहस्य उद्घाटन करना कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ में बिकती है, ये स्वीकृति साबित करती कि पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की खाई में डूब चुकी। सोनिया राहुल का नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस लोकतंत्र व संवैधानिक कुर्सियों की नीलामी कर रही है। संवैधानिक पदों को बोली लगाई जा रही। पंजाब के 5 नेताओं द्वारा 500 करोड़ के अटैची लेकर मुख्यमंत्री बनने के लिए बोली लगाना, घूमना और इस रहस्य का खुलना कि यहां कांग्रेस में सब कुछ बिकाऊ है। कांग्रेस की नीलामी में मासिक किस्त वाली रंगदारी तय होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब को जिम्मेदार राजनीति चाहिए। आपदा एवं कापदा ने राज्य को बोली का बाजार बना दिया है, लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है। जनता ऐसे नाकारे, नालायक, नाकामयाब, भ्रष्टाचार और आंतरिक झगड़ों में लिप्त नेताओं से छुटकारा चाहती है, आपदा व कापदा से मुक्ति चाहती है और पंजाब की जनता भाजपा को चाहती है, नरेंद्र मोदी। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.